Hello dear students, today we have one more problem in which we need to find the value of log n to the base a minus n to the base b upon log of n to the base b minus log of n to the base c. इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम लेट मी सी कि यहाँ पे आपको a ग्रेटर देन ज़ीरो, c ग्रेटर देन ज़ीरो, b इक्वल टू रूट ए सी, a नॉट इक्वल टू वन, c नॉट इक्वल टू वन, ए सी नॉट इक्वल टू वन, n ग्रेटर देन ज़ीरो, ये सब दिया हुआ है. तो लेट मी डिस्कस कि ये सब क्यों दिया हुआ है. वो इसलिए दिया हुआ है बिकॉज लॉगरिथम जो हमारा होता है वो डिफाइन ही तब होता है जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव हो. तो यहाँ पे बेस क्या है, a है, b है, c है. तो a b c मस्ट बी पॉजिटिव. तो a पॉजिटिव, c पॉजिटिव. b is square root of ac, that means b is also positive because square root of any number is always positive. And base must not be 1. तो a not 1, b not 1, c not 1. तो a not equal to 1, c not equal to 1 दिया है. And this is actually root ac अगर ac 1 नहीं है तो root ac भी 1 नहीं होगा, that means b is not equal to 1. n is argument that must be greater than 0. So in this question all these conditions are given so that these terms will be defined and nothing else. इनका और कोई यूज़ नहीं है, that's it, बस इसीलिए दिए गए. नाउ बच्चों क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं. हमें इसकी वैल्यू बतानी है इनमें से क्या है. तो बच्चों लॉग के क्वेश्चंस जब भी आप कभी सॉल्व करते हैं, स्पेशली IIT JEE में जब भी लॉग के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्विंग के लिए, तो आपको हमेशा मेन कंसर्न क्या होना चाहिए, बेस सेम होनी चाहिए. यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या करें, बेस सेम बना लेते हैं. तो बेस सेम बनाने के लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी. बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है, बेस चेंज प्रॉपर्टी कहता है लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ b टू द बेस एनी नंबर अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस एनी नंबर. तो ये एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, तो 10 भी हो सकता है. 10 चूँकि बेस में लिखा नहीं जाता है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट राइटिंग हियर. तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी. सो c कैन बी टेकन एज 10 ऑल्सो. So if I take this new base as 10, so I can write it. So let me write the first of all given expression, log of n to the base b upon log of n to the base b minus log of n to the base c. So what can I write it using base change property? So it can be written as log n upon log a minus log n upon log b. Okay, similarly in denominator what can I write, I can write log n upon log b minus log n upon log c. सो बच्चों न्यूमरेटर से आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉमन है, log n कॉमन है. इन ब्रैकेट यू विल बी गेटिंग log a minus log 1 upon log b. Similarly in denominator also log n is common, so 1 upon log b minus 1 upon log c. Now further solving, log n getting cancelled, same number cancel हो सकते हैं numerator denominator से. Here you will be getting log of b minus log of a. मैं फिर बोल दूँ बेस नहीं लिख रहा हूँ, that means बेस 10 है. अपॉन आएगा log a into log b. now whole denominator में आएगा log c minus log b upon log b into log c. I hope this much is clear. तो बच्चों अब आगे क्या कर सकते हो, आगे आप ये देख सकते हो कि log b और log b कैंसिल हो जाएंगे. अगर कैंसिल हो जाएंगे तो this will become log of b minus log of a upon log of a into log of c upon log of c minus log of b. Now one more property let me use, log of m minus log of n. What is it, this is actually log of m upon n. So shall I use it here, this will become log of
b by a upon log a into log c upon log of c by b. Now what to do? One property is there, b is equal to root ac is given in the question, so तो b इक्वल टू रूट ए सी रख देते हैं. क्यों रख देते हैं? बिकॉज ऑप्शंस जितने भी हम देख पा रहे हैं, अगर आप देखो तो ऑप्शंस जितने भी हैं, ऑप्शंस में आपके सामने हर जगह ए एंड सी दिखाई दे रहा है, बी नहीं दिखाई दे रहा. सो विल ट्राई टू एलिमिनेट बी. हाउ कैन वी एलिमिनेट? बाय पुटिंग बी इक्वल टू रूट ए सी. सो विल पुट बी इक्वल टू रूट ए सी हियर. So if I will put b equal to root AC here, so this will become log of root AC upon A into log C upon log A into log C upon root AC. Now you people can observe this will become log of root of C upon root of A. This is log C, this is log A, and this will become log root of C upon root of A. Same. So this term and this term, numerator and denominator both are same, so getting cancelled. So what we are left with? We are left with log of C upon log of A. Now this question is moving towards the answer. Now what can be the answer? Let me see the options. Options क्या दिए गए थे? Options हमको दिए गए थे, ओहो ऑप्शंस में तो n अवेलेबल है, यहाँ पे n बेस में अवेलेबल है, यहाँ पे n आर्ग्यूमेंट में अवेलेबल है, यहाँ पे a नहीं है, n नहीं है, log a to the base c है. बट what we are getting? We are getting log not a to the c. ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है मुझे? ये मिल रहा है log ऑफ c टू द बेस ए मिल रहा है. ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, बिकॉज ऑप्शन सी बोल रहा था log ऑफ a टू द बेस सी, तो वो तो नहीं है. नाउ तो क्या हो सकता है? तो बच्चों ठीक है, तो दोबारा से बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं. log ऑफ c अपॉन c टू द बेस ए कैन बी रिटन एज log ऑफ c टू द न्यू बेस, सपोज n ले लेता हूँ मैं, log ऑफ a टू द बेस n, ऐसा लिख सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी से? बेस चेंज प्रॉपर्टी. तो ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? log ऑफ c टू द बेस n अपॉन log ऑफ a टू द बेस n. लेकिन ऑप्शन बी देखें तो बी ऑप्शन में log ऑफ a टू द बेस n अपॉन c टू द बेस n है. ये भी गलत हो गया, ये तो c टू द बेस n a टू द बेस n है, उल्टा हो गया. ठीक है, तो अभी एक और प्रॉपर्टी हमारे साथ अवेलेबल है. एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a. ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी कहता है कि आर्ग्यूमेंट और बेस को आप इंटरचेंज कर सकते हो अगर कंप्लीट लॉग को रेसिप्रोकल कर दो. देखो a बेस में आ गया, b आर्ग्यूमेंट में चला गया, तो ठीक है, इसमें भी यही अप्लाई कर दो. जब इसमें ये अप्लाई करोगे सो इट विल बिकम, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, log ऑफ n टू द बेस c हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में log ऑफ n टू द बेस a. नाउ यू कैन सी ऑप्शन a इज सेम, log ऑफ n टू द बेस a अपॉन n टू द बेस c. Look at here, n to the base a upon n to the base c. So this is our final answer. I hope you got the solution. So बच्चों, if this solution is understandable for you, so kindly like this video and subscribe to my channel. And for more IIT JEE videos, you can post your queries related to IIT JEE mathematics. You can post your doubts to the comment section, and I'll try to get a video solution of each and every problem. Thank you.